Hello students, this is Dr. Vijay Duar. Welcome to Anand Tutorials. Today we are going to see metallurgy in Science 1. So metallurgy एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और कुछ चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ इजी है. तो चलो शुरू करते हैं हम लोग metallurgy. So metallurgy में what is the definition of metallurgy? तो definition of metallurgy मतलब तो यही है कि आप मेटल एक्सट्रैक्ट करो और आएगा ज़मीन में से या माइंस में से, उसको आप ये करो, ओवर ड्रेसिंग करो, उसके बाद में मेटल एक्सट्रैक्शन करो और मेटल प्यूरीफाई करो. सो ये सारी स्टेजेस हमारी मेटलर्जी में जनरली आ जाती है. ये इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहता है. तो अब थोड़ा सा हम मेटल्स की तरफ देखते थे, मेटल्स नॉन मेटल्स. सो मेटल मेनली एग्जिस्ट एज इन अ सॉलिड स्टेट एंड मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, गैलियम एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. सो देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. तो ये क्या होता है? जनरली मेटल्स आर जनरली सॉलिड और इसके एक्सेप्शन में क्या है? एक्सेप्शन मर्क्यूरी and gallium. So mercury and gallium are what? They are liquid at room temperature. Metals are having lusters. Luster means shining appearance. Metals are good conductor of. So metals are good conductor of heat and electricity. They are good conductor of heat and electricity. And इसमें और कुछ दिया है आप लोगों को, जैसा मेटल्स आर जनरली हार्ड. एक्सेप्शन है इसको. Sodium, which is soft, sodium, potassium and lithium are soft. You can cut it, can be cut by knife. इतने सॉफ्ट होते हैं ये. सो ये एक पॉइंट हो गया. उसके बाद में साउंड इज प्रोड्यूस विद सर्टन मेटल्स आर व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन सर्टन मेटल्स आर स्टक एंड दिस इज कॉल्ड sonority and these metals are known as sonorous material. So when you struck a metal with something, it produces sound. जैसा बेल रहता है मंदिर में का आपने देखा होगा. सो ये कोई भी मेटल अगर आप स्ट्रक करते हो किसी भी हेवी चीज़ से तो साउंड प्रोड्यूस होता है. एंड दे आर नथिंग बट दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी एंड दोज मेटल्स आर नोन एज सोनोरस मटेरियल. नाउ व्हाट अबाउट नॉन मेटल? सो नॉन मेटल आर व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर कंसिडर्ड, it is found that the some non-metals are in a solid state while other some are in gaseous state. Exception non-metal bromine is in liquid state. So non-metals की property क्या है? Non-metals. So non-metals में सबसे पहले आता है some non-metals are solid and some are gases. इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज ब्रोमीन. Bromine is liquid
at room temperature. Bromine is liquid. Non-metals are not hard. Non-metals are not hard. Exception, diamond, which is allotrope of carbon, which is hardest substance. Hardest substance found. So non-metals are bad conductor of heat and electricity. Non-metals are bad conductors of heat and electricity. And here is also one exception. Graphene, graphite. This is also allotrope of carbon. Which is good conductor of electricity. Okay. So these are about metals and non-metals. Now we have to see chemical properties of metals. Now chemical properties of metals क्या होते हैं? Metals are reactive. They lose electrons easily and become positively charged ions. That is why the metals are called electropositive elements. तो इसका एक एग्जांपल क्या है? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281. So in this 281, this one electron can be easily donated, and if you donate this one electron, you will have the configuration of 2,8, and here the sodium is going to be sodium ion. इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके कारण हम इसको सोडियम आयन कहेंगे. सो मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो मेटल कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड दे आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अभी रिएक्शन ऑफ मेटल्स देखते हैं. तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स में क्या क्या है देखो. मेटल्स कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑन हीटिंग विद एयर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म. The sodium and potassium are very reactive. The sodium metal combines with oxygen in the air even at room temperature and forms sodium oxide. Here you can see 4Na plus O2 gives 2Na2O. This is sodium oxide. And on exposure to air, sodium readily catches fire. And therefore, to prevent the accident in the laboratory, you have to kept sodium inside the kerosene. बिकॉज जैसे ही वो एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, इट विल स्टार्ट बर्निंग, इट विल कैच फायर, एंड सो एज टू अवॉइड दैट यू कीप इट इनसाइड द केरोसिन. द ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दे रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म अल्कली. जैसे अब नाउ ये सोडियम ऑक्साइड बन गया. सोडियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में डाल देते तो यू विल गेट NaOH. NaOH इज नथिंग बट अल्कली. नाउ Mg magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. And if you put this magnesium oxide in the water, you will find magnesium hydroxide. अब देखो reaction of metal with water. What will happen to metals when you put it in the water? So sodium and potassium react rapidly and vigorously with water, liberates hydrogen gas. Now here 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2. H2 means hydrogen gas plus heat. Heat is released. This is also one of the example of एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बिकॉज आपको प्रोडक्ट साइड में हीट मिल रहा है. जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि जो रिलीज़ करते हैं हीट, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड द सेम विल हैपन टू पोटेशियम ऑल्सो. पोटेशियम प्लस H2O गिव्स KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट. On the other hand, calcium react with the water slowly and less vigorously, and the hydrogen gas is released in this reaction, collects on the surface of the metal,
in the form of bubble and the metal floats on the water. So Ca plus H2O gives CaOH twice, calcium hydroxide plus hydrogen. The metals aluminum, iron, zinc do not react with cold or hot water, they react with the steam to form their oxides. तो steam के साथ react होना मतलब क्या कि H2O will remain same but it will be in the gaseous form, that you have to take care of. ये gaseous form में है 2Al plus 3H2O gives L2O3 plus 3H2. Fe plus 4H2O, you have to write here gaseous state. This is very important because this is steam. And Fe3O4 plus 4H2, Zn plus H2O gives ZnO plus H2. ना इस एल्यूमिनियम का मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा. आपके यहाँ पे प्रेशर कुकर होगा सबके घर पे, तो आप प्रेशर कुकर जनरली एल्यूमिनियम के रहते हैं. अभी अभी स्टेनलेस स्टील के भी प्रेशर कुकर आ रहे हैं, बट एल्यूमिनियम का अगर ये होगा प्रेशर कुकर होगा तो जब आप उसको नया खरीदते हैं तो इट इज़ शाइनी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, दे विल अपीयर शाइनी. बट आफ्टर सम डेज आपको पता है कि प्रेशर कुकर में स्टीम बनता है, तो वो स्टीम एल्यूमिनियम के सरफेस के साथ रिएक्ट हो जाता है और एल्यूमिनियम का सरफेस ऐसा डार्क कलर का हो जाता है. तो दैट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस Al2O3 और ये उसमें ये रिएक्शन हो जाता है. अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन में जब भी रिएक्ट होता है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहता है. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है मैग्नीशियम, उसके नीचे एल्यूमिनियम, फिर जिंक एंड सबसे आखिरी में रहता है फेरस मतलब आयरन. अभी और कुछ रिएक्शन है, जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर HCl के साथ हो जाए तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म MgCl2 प्लस H2. एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होता है तो क्या हो जाएगा 2AlCl3 प्लस H2, Fe 2HCl प्लस FeCl2 and ZnCl2 plus H2. Now how you are going to, what reaction will happen when the metal react with nitric acid? Nitric acid का फॉर्मूला क्या है HNO3. नाउ आप देखिए जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट होता है तो नाइट्रेट सॉल्ट्स तैयार होते हैं. नाइट्रेट सॉल्ट्स का मतलब क्या हो गया, ये नाइट्रेट सॉल्ट्स. अब देखो कॉपर को हम रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, ये एक्वस है, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म CuNO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2. सो दिस इज CuNO3 ट्वाइस इज नथिंग बट कॉपर नाइट्रेट. यहाँ पे भी कॉपर नाइट्रेट ही फॉर्म होगा, बट यहाँ रिएक्शन थोड़ी अलग है इससे, क्योंकि यहाँ हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम डाइल्यूट HNO3 यूज़ कर रहे हैं. सो ये दो रिएक्शन में इतना डिफरेंस आ जाएगा. नाउ aqua regia. Aqua regia is highly corrosive and fuming liquid. It is one of the few reagents which can dissolve noble metals like gold and platinum. Aqua regia is freshly prepared by mixing concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the proportion 3:1. मतलब 3 part will be HCl, that is hydrochloric acid, and 1 part will be nitric acid. तो इसमें गोल्ड भी डिज़ोल्व हो जाता है, प्लेटिनम भी डिज़ोल्व हो जाता है. जनरली ये नोबल मेटल है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, बट एक्वा रेजिया में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं. ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल. तो सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल में क्या होगा ये हम लोग देखेंगे. मेटल A plus salt solution of B, this gives you salt solution of metal A plus metal B. Now how it happens, ये कैसे होता है ये हमको देखना है. ये जनरली इस रिएक्शन को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, दिस इज क्लासीफाइड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा होगा, इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी, तो देखते हैं हम लोग, बाद में आएगा कभी. अब देखिए ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव. सो यहाँ पे आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज़ में, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर का जो हिस्सा रहता है दैट इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बीच में का ये मिड रिएक्टिव रहता है और नीचे का लो रिएक्टिव, और गोल्ड जनरली निग्लिजिबली रिएक्टिव रहता है. ये बहुत कम जगह रिएक्ट होता है या नहीं के बराबर आप बोल सकते हो ऐसे. तो ये इस कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं. अब देखो अब जब भी क्या होता है कि ये जैसा मेटल A प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B है, इफ़ मेटल A इज़ मोर रिएक्टिव देन दिस मेटल B, व्हाट विल हैपन. आप थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा जिंक है, जिंक और आयरन. तो जिंक और आयरन में ये दो चीज़ें रहती है. तो अगर आपके पास आयरन का ये है सॉल्यूशन है और जिंक मेटल आपका फ्री है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, जिंक का सॉल्यूशन बन जाएगा, जिंक सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा और आयरन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन दैट यू कैन सी ओवर हियर। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पिछले लेक्चर में, सो मैं अभी नहीं लूँगा क्योंकि ये वैसे भी बड़ा है, तो ये और बड़ा हो जाएगा लेक्चर। अभी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स, अभी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल इज़ अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट। अब देखिए इसका सबसे ईजी एग्जाम्पल है Na प्लस Cl, जैसे यहाँ पे 2Na रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल, मेटल्स विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है। तो ये रिएक्शन दिया आपको 2Na plus Cl2, it's going to give you 2NaCl, 2NaCl। तो ये Na सोडियम है, दिस इज योर मेटल, एंड दिस इज क्लोरीन विच इज नॉन मेटल। इफ दे रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। अब जनरली इनमें रिएक्शन कैसा होता है ये तो आपको पता ही है कि Na क्या है, Na का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 और Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Cl 2,8,7। अगर आप यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ डोनेट कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी Na प्लस, मीन्स दिस विल बी सोडियम आयन एंड हैविंग कॉन्फ़िगरेशन लाइक 2,8। अब इसका ऑक्टेट जो है फुलफिल हो गया और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाएगा तो ये Cl माइनस हो जाएगा, जाएगा 2,8,8। अब देखिए यहाँ पे भी ऑक्टेट इसका फुलफिल हो गया। ऑक्टेट मीन्स व्हाट, द लास्ट शेल, और उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट फुलफिल हो गया। ऑक्टेट फुलफिल हो गया मतलब अभी इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, स्टेबल हो गया। अभी ये कंबाइन होकर NaCl बन जाएगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये आयंस फॉर्म होते हैं और फिर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड की खासियत क्या होती है कि आयोनिक बॉन्ड में जो भी मेटल फॉर्म होते हैं वो ब्रिटल रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं, और साथ साथ इनके बीच में का जो बॉन्ड रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि आपको पता है Na इज़ कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड Cl इज़ कैरिंग नेगेटिव चार्ज, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड ईच अदर। और इनके बीच में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में का, ये बहुत ज़्यादा रहता है, और बहुत ज़्यादा रहने के कारण इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, इट्स वेरी हाई, एंड दिस बॉन्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। ये डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करने के लिए। तो ये होती है आयोनिक कंपाउंड की खासियत। अब देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में, नॉन मेटल कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन देखते हैं हम लोग पहले। C+O2 गिव्स कंप्लीट कंबशन CO2, और CO2 गैस के साथ एसिडिक नेचर का रहता है। फिर 2C+O2 गिव्स 2CO, दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। S+O2 गिव्स SO2, दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो ये है आपके नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अब देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। नाउ नॉन मेटल कौन सा है, Cl2 इज ऑल्सो नॉन मेटल, क्लोरीन। जनरली द नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एक्सेप्ट हैलोजेंस। तो हैलोजन का, हैलोजन मतलब ये ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें फ्लोरीन भी रहता था, फ्लोरीन को ज़्यादा हमने यहाँ कंसिडर नहीं किया। तो क्लोरीन प्लस H2O गोइंग टू गिव यू HOCl। HOCl मीन्स व्हाट, हाइड्रोक्लोरस एसिड, और इसके बाजू में ये बन रहा है HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डिफरेंस समझ लीजिए, दिस इज हाइड्रोक्लोरस एसिड एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स विथ नॉन मेटल। नाउ डाइल्यूट एसिड, ये नॉन मेटल है क्लोरीन, अभी हमने देखा HBr। तो HBr इज अ एसिड एंड ये अगर डाइल्यूट होता है तो इसमें क्या होगा कॉम्बिनेशन, 2HCl प्लस Br2, 2HCl प्लस Br2। तो इसमें भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, Cl2 डिस्प्लेस कर देता है Br को और Br सेपरेट होकर बाहर निकल जाता है, दिस बिकम्स HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, सो सल्फर प्लस हाइड्रोजन गोइंग टू गिव यू दिस हाइड्रोजन
hydrogen sulfide gas. N2 plus 3H2 going to give you 2NH3, that is ammonia. अभी आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में तो हमने देख ही लिया है कि आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है. दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड दे हैव अ डेफिनेट शेप, आर स्मूथ एंड शाइनी. एंड इसमें क्या होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है. ये सबका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ दी है. ये जनरल प्रॉपर्टीज़ वही है जो मैंने अभी डिस्कस की है आपके साथ. अब देखते हैं हम लोग मेटलर्जी. तो मेटलर्जी क्या होती है अभी देखो. द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर द यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी. ये हमने एट द बिगिनिंग डिस्कस किया था कि इसमें एक्सट्रैक्शन रहता है, वो मेटल का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन. So this is metallurgy. Now what is exact difference between ore and minerals? So minerals is anything which contains metals in whatever proportion. बहुत कम भी रहता है तो भी हम उसको मिनरल बोल सकते हैं. बट ओर्स कैसे रहते हैं? तो ओर्स ऐसे रहते हैं जिसमें जो मेटल का परसेंटेज रहता है काफ़ी हाई रहता है, सो दैट यू कैन इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट दैट मेटल फ्रॉम द ओर. इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ ओर्स. अगर आपके पास ओर है जिसमें काफ़ी अच्छा परसेंटेज मेटल का, तो आप उसमें से मेटल निकाल सकोगे इकोनॉमिकली. मतलब नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि आप अगर किसी मिनरल को चूज़ करते हैं और उसमें से मेटल निकालने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है आपको जितना खर्चा लगेगा, एक्सपेंसेस जितने लगेंगे वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उससे कम रेट में आपको मार्केट में मेटल अवेलेबल हो जाएगा. सो दिस इज़ नॉट द इकोनॉमिकल केस कि आप किसी मिनरल में से मेटल निकालो. आपको हरदम ओर सिलेक्ट करना पड़ेगा. अभी यही डेफिनेशन यहाँ पे दिया होगा आपको मेटल, हाँ, ओर्स का और मिनरल्स का डिफरेंस दिया है. अब हम लोग देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में क्या होता है, जब भी आप किसी माइनिंग साइट पे अगर जाओगे, तो माइनिंग साइट पे जाते वक्त आपको ये दिखेगा कि वहाँ से जो ट्रॉलीज़ बाहर निकलती है, उस ट्रॉलीज़ में सारा ओर फिलअप किया रहता है और वो ट्रॉलीज़ बाहर निकलती है. ओर्स में क्या रहता है, ओर्स में बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे सेपरेटिंग ऑफ गैंज. अभी ये गैंज क्या होता है, ये गैंज मतलब ये होता है कि इसमें सैंड रहेगा, सॉइल रहेगा और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी अदर देन मेटल. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन मेटल ओनली, but these are some unnecessary things which are present in the ore. And first of all, you have to concentrate the ores. Concentrating means what? You have to remove this unnecessary part from the ore, and that process itself is known as concentration of ore. तो concentration of ore अब कैसे करेंगे? So there are several methods. So first method is separation based on gravitation. The heavy particles of the ore can be easily separated from the light particles of the ganj by gravitational method, and the process to carry out this separation are as follows. So in this method आप देखिए ये Wilfley table method है. तो Wilfley table method में क्या है, there are slits and vibrating tables. और इसमें क्या आता है, पाउडर्ड ओर. अभी जो भी आपके पास ओर आएगा, तो इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ चंक्स, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उसके, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका साइज रिडक्शन करके उसको पाउडर फॉर्म में लाना पड़ेगा. वंस इट इज़ इन द पाउडर फॉर्म, फिर यू विल मिक्स दिस पाउडर विथ वाटर एंड लेट इट फ्लो ऑन दिस टेबल. अभी इसमें जब ये फ्लो होगा तो क्या है, दिस टेबल इज़ वाइब्रेटिंग एंड वाटर अलॉन्ग विथ पाउडर ऑफ ओर इज़ फ्लोइंग ओवर दिस सरफेस. और इसमें स्लिट्स है, तो इस स्लिट्स में से क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड ओर अपना बाहर निकल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें गैंज वाली वो पानी के साथ फ्लो होके यहाँ निचले पार्ट में कलेक्ट हो जाएगी. सो ड्यू टू वाइब्रेशन दिस मेटल इज गोइंग टू कलेक्टेड एट वन साइड ऑफ द Wilfley table and the ganj which will flow with water and get collected at the bottom of the table. So इस तरीके से आप इसका सेपरेशन करेंगे. फिर है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ अ मिल. देयर इज अ टैपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज इन अ ग्राइंडिंग मिल. ग्राइंडिंग मिल मतलब क्या होता है, जो हमारी आटा चक्की रहती है उसके ऊपर इस तरीके का एक हॉपर रहता है. इस हॉपर में हम जनरली जो भी ग्रेन हमको पीसने का है वो डाल देते हैं. तो इन द सेम वे हम ऐसा ही करेंगे यहाँ पे भी. इट ओपन्स ग्राइंडिंग मिल, इट ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर
that is tapering at the lower side. The tank has outlet for water on the upper side and water inlet on the lower side. Finally, groundwater is released in the tank and a forceful jet of water is introduced in the tank from the lower side. यहाँ से वाटर जेट जाएगा ऊपर, यहाँ पानी भरा हुआ है एंड दिस इज़ अ पाउडर्ड ओर, आप यहाँ डालोगे तो पाउडर्ड ओर में क्या हो जाएगा, जो मेटल हेवी है दैट मेटल विल गेट सेटल्ड ओवर हियर, और यहाँ से ये मेटल कॉन्सेंट्रेटेड ओर निकल जाएगा बाहर एंड यहाँ से जो गैंज रहेगा वो गैंज पानी के साथ बाहर निकल जाएगा. एज द गैंज इज लाइटर देन metal, it will float on the surface and get outside. This is a ore suspension. ठीक है. Now magnetic separation method. This method requires electromagnetic machine. The main part of this machines are two types of iron rollers and a conveyor belt moving continuously around it. Now ये एक roller है, ये दूसरा roller है. One of the roller is मैग्नेटिक रोलर, ये मैग्नेटिक रोलर है और ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है और इसमें कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है. आप जो भी पाउडर्ड ओर रहेंगे यू विल पुट इट ओवर हियर ऑन द कन्वेयर बेल्ट. अब आप देखिए कि जो मेटेलिक पार्ट रहेगा, जो मैग्नेटिक पार्ट रहेगा ओर का, वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा एंड गैंज यहाँ कलेक्ट हो जाएगी यहाँ, मतलब उसको हम नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट कहेंगे और ये मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट. सो यू विल एबल टू सेपरेट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक थिंग्स in the magnetic separator. So अभी देखते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन. फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन में इज बेस्ड ऑन टू अपोजिट प्रॉपर्टीज, हाइड्रोलिक, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. So hydrophilic is what? Hydrophilic means water loving. Hydro is water and philic is what? Love. So one which loves the water and hydrophobic is one which hates the water. सो ऐसे दो पार्ट्स जनरली रहते हैं. हियर द पार्टिकल ऑफ द मेटल सल्फाइड्स ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी गेट वेटेड मेनली विथ ऑयल, वाइल ड्यू टू हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी द गैंज पार्टिकल्स गेट वेटेड विथ वाटर. तो हम इसमें क्या कहते हैं, वाटर एंड ऑयल, ये दो मीडियम्स रहते हैं. तो जो सल्फाइड ओर्स रहते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के रहते हैं. हाइड्रोफोबिक मीन्स व्हाट, यू विल नॉट एबल टू वेट दैट पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ वाटर. अगर आप उसको पानी में डुबो देंगे तो भी वो इट विल नॉट वेट बाय वाटर, गीला नहीं होगा पानी से, पर ऑयल से वो गीला हो जाएगा. सो हाइड्रोफोबिक नेचर के जो भी पार्टिकल्स रहते हैं विच आर वेटेड बाय ऑयल एंड हाइड्रोफिलिक जो रहते हैं दोज आर वेटेड बाय वाटर. सो हम क्या करते हैं इसमें, आप देखिए हियर इज अ डायग्राम. यहाँ क्या करते हैं, वाटर प्लस पाइन ऑयल डालते हैं. ये एजिटेटर है. एजिटेटर इज़ लाइक आप मिक्सी का पॉट देखे होंगे, तो मिक्सी के पॉट में वो नीचे जो हिस्सा रहता है जो गोल 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 घूमता रहता है, जिसके वजह से हम मसाले या और भी कोई चीज़ क्रश कर सकते हैं, जो पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं. तो वो जो चीज़ रहती है उसी के तरीके का ये रहता है, एजिटेटर रहता है. अब इस एजिटेटर में हम क्या करते हैं कि एयर भी ब्लो करते हैं, एयर का सप्लाई देते हैं. वो एयर का सप्लाई यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे वाटर प्लस पाइन ऑयल रहेगा, तो यहाँ बहुत सारा फ्रोथ तैयार हो जाएगा. अब फ्रोथ में क्या हो जाएगा, अभी आपको पता है कि ऑयल जो है, ऑयल इज़ हैविंग लेसर डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर, इट विल फ्लोट ऑन द वाटर. और जो हमारा ये है ओर है मेटल सल्फाइड, सो एज द मेटल सल्फाइड इज हाइड्रोफोबिक, इट विल नॉट गोइंग टू स्टिक टू द वाटर, इट विल स्टिक टू ऑयल. तो ऑयल के साथ ये स्टिक हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा. और जो गैंज है which is hydrophilic in nature, which will get weighted by water and settle at the bottom. तो गैंज यहाँ से निकलेगा और इस फ्रोथ में क्या हो जाएगा, you will have the concentrated sulfide ore and then you will separate that sulfide ore from the froth. So this way the froth flotation works. The particles of certain sulfide ore float with the foam on the water as they are preferentially get weighted by oil. For example, this method is used for the concentration of zinc blends, ZNS, or copper pyrite, CuFeS2. Now leaching. What is leaching? The first step in the extraction of metals, aluminum, gold, silver from their ores is method of leaching. In this method, ore is soaked in a certain solution for a long time and ore dissolves in the solution due to specific chemical reaction, and the gangue however does not react and therefore it does not dissolve in the solution, so it can be separated. For example, concentration of bauxite, aluminum ore is done by leaching method.
here the bauxite is soaked in aqueous NaOH or aqueous Na2CO3 which dissolve the main ingredient alumina in it. अभी what is leaching basically, अब लीचिंग अगर करना है तो लीचिंग के लिए क्या करना पड़ता है, देखो आपके पास ओर है, पाउडर्ड ओर, उस पाउडर्ड ओर में आप सर्टन सॉल्यूशन डाल देंगे। अब सर्टन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या होता है, नाउ यू नो दैट ओर कंटेन्स टू पार्ट्स, वन इज गैंज विच इज़ अननेसेसरी पार्ट एंड अदर इज मेटल। तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं वो सॉल्यूशन में मेटल डिसॉल्व हो जाता है, और गैंज जो कि उसके साथ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में क्या हो जाता है कि मेटल डिसॉल्व हो जाता है। पर गैंज जो कि रिएक्ट नहीं होती वो डिसॉल्व होगी भी नहीं, और हम क्या कर लेंगे कि वो सॉल्यूशन में पूरा मेटल डिसॉल्व करके बाहर निकाल देंगे। इसका एक अच्छा एग्जांपल यहाँ दिया है कि जब भी आप एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हो ओर से, जो बॉक्साइट ओर रहता है, एल्यूमिनियम का ओर, उसको बॉक्साइट नाम है, तो बॉक्साइट को NaOH या Na2CO3 में हम डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो पूरा बॉक्साइट उसमें डिज़ोल्व होके बाहर निकल जाता है, और जो गैंज रहती है वो एज इट इज़ रह जाती है। सो यू कैन सेपरेट गैंज फ्रॉम मेटल ईजिली विद द हेल्प ऑफ दिस लीचिंग। इसका एक और डे टू डे एग्जाम्पल लीचिंग का ये है, जो हम चाय पीते हैं तो उसमें क्या रहता है, टी पाउडर में टैनिन रहता है, तो हम क्या करते हैं, उस जो चाय पाउडर रहता है, टी पाउडर, वो पानी में डाल देते हैं और उसको उबालते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो टी पाउडर रहता है उस पाउडर के अंदर जो टैनिन रहता है वो टैनिन पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, और फिर हम उसको छान लेते हैं, तो वो पूरा जो टैनिन है वो पानी के अंदर आ जाता है, जिसको हम चाय, उस मिक्स सॉल्यूशन को हम चाय बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये भी किया जाता है कि और लिया जाएगा पाउडर्ड और उसमें कुछ सॉल्यूशन डाला जाएगा, कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन के बाद में मेटल उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होकर बाहर निकल जाएगा, और गैंज जो कि डिज़ोल्व नहीं होगी उस सॉल्यूशन में एज इट इज़ रह जाएंगे। सो दिस वे यू विल एबल टू सेपरेट द मेटल फ्रॉम और गैंज, इन दिस वे यू विल सेपरेट। तो ये पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर इसके ओर्स के लिए किया जाता है। तो दिस वॉज योर फर्स्ट स्टेप, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी का पहला स्टेप यहाँ ख़त्म हो जाता है। नाउ वी विल सी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है, अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। मेटल के जो हमने टाइप्स देखे थे, अभी ये एक्टिविटी सीरीज़ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी यहाँ पे, दिस वाज द एक्टिविटी सीरीज़। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, ये मिड रिएक्टिविटी वाले थे, और ये लो रिएक्टिव थे। सो हियर ऑल्सो वी विल ट्रीट देम अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, जस्ट लाइक जो हाईली रिएक्टिव है उस हाईली रिएक्टिव को हम कैसे ट्रीट करेंगे या कैसे उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे उस मेटल्स का, फिर मिड रिएक्टिविटी, एंड उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि लो रिएक्टिव मेटल्स जो रहते हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल रहते हैं, मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव and their reactivity decrease down the series. For example, potassium, magnesium, aluminum are reactive metals, and reactive metals have large capacity to form cations by losing electrons in their outermost shell. For example, the reactive metals react vigorously with the dilute acid to give hydrogen gas, and highly reactive metal burn by reacting with oxygen from air at room temperature, and their extraction has to be done by electrolytic reduction. तो electrolytic reduction करेंगे. For example, metal sodium, calcium and magnesium can be obtained by electrolysis of their molten chloride salts. In this process, the metal is deposited on cathode while chlorine gas is liberated at anode. तो ये देखिए, जैसे हमने बोला है कि इसका क्लोराइड के सॉल्ट्स जो रहते हैं इस मेटल के, जैसे सोडियम का क्लोराइड क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड इज़ अ कॉमन सॉल्ट, उसमें से हम सोडियम निकाल लेंगे, जैसे Na प्लस E इज गोइंग टू गिव यू Na, एंड Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस E. दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस इज रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन क्यों है, बिकॉज यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. तो कैथोड पे आ जाएगा आपका सोडियम और एनोड पे आ जाएगा आपका क्लोरीन. So this is your extraction of reactive metals. So
एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को, इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है। अब देखो इसका और क्या होता है, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, इसमें दो प्रोसेस है, एक बेयर्स प्रोसेस एंड अदर इज़ हॉल्स प्रोसेस। वो नियरली सेम ही है, सिर्फ यहाँ NaOH यूज़ किया जाता है और Na2CO3 यूज़ किया जाता है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो हम देखते हैं उनके साथ। The bauxite is the main ore of the aluminum. Silica, ferric oxide and titanium oxides are the impurities present in bauxite. तो ये these three are impurities: silica, ferric oxide and titanium oxide are the impurities present in bauxite. Separation of these impurities are done by leaching process using either Byers method or Hall's method. तो बायर्स मेथड या हॉल्स मेथड से हम देखते हैं। तो इन द बायर्स प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन द बॉल मिल। अभी ये बॉल मिल में ग्राउंड होता है, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस साइज रिडक्शन करना है, हमको उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इतना ध्यान में रखना। देन इट इज़ लीच बाय हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड caustic soda NaOH at 140 to 145 degree 150 degree centigrade under high pressure for 2 to 8 hours in a digester. Aluminum oxide being amphoteric in nature, it reacts with the aqueous solution of sodium hydroxide to form water soluble sodium aluminate. अब देखिए ये है आपका बॉक्साइट और Al2O3 2H2O। इसको हम क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है और ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का मतलब क्या हो गया, ये जितना भी एल्यूमिनियम और है वो सब का सब डिजोल्व हो जाएगा क्या में, NaOH में, एंड इट विल फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट प्लस 3H2O। अभी देखिए आयरन ऑक्साइड इन द गैंज डज नॉट डिजोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब आयरन ऑक्साइड तो डिजोल्व नहीं हो रहा, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे बाय मीन्स ऑफ फिल्ट्रेशन। हाउएवर द सिलिका इन द गैंज डिजोल्व इन aqueous sodium hydroxide to form water soluble sodium silicate। तो ये sodium silicate हो जाएगा water soluble। The aqueous sodium aluminate is diluted by putting water in it and it is cooled to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि ये 140 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका हीटिंग हुआ था, लीचिंग प्रोसेस हुआ था। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो है अब इसका टेम्परेचर भी 140-150 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, वी विल ऐड सम वाटर एंड विल ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सेटल डाउन हो जाएगा। इन द हॉल्स प्रोसेस द ओर इज पाउडर्ड एंड देन लीच बाय हीटिंग विद द एक्वस सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए यही डिफरेंस है कि हम बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस में क्या फ़र्क रहता है। तो हम बेयर्स प्रोसेस में क्या यूज़ किए थे हमने, बेयर्स मेथड, तो यहाँ हमने NaOH यूज़ किया, NaOH, एंड इन हॉल्स मेथड हमने यूज़ किया था Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डिफरेंस है। इन द डाइजेस्टर टू फॉर्म, यहाँ पे भी हम क्या फॉर्म करते हॉल्स प्रोसेस में, द पाउडर्ड ओवर इज then leached by heating with the aqueous sodium carbonate in the digester to form water soluble sodium aluminate. Then the insoluble impurities are filtered out and the filtrate is warm and neutralized by passing carbon dioxide through it. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें क्या किया था हमने, ये डाइजेस्टर था, इस डाइजेस्टर में क्या था NaOH, इसमें क्या पुट किया था हमने, पाउडर, this is powdered ore, ये तो इसमें से बाहर क्या निकला था, यहाँ से निकला था हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये बाहर निकला था। यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये उसके साथ में हमने कितने घंटे के लिए, 1 to 2 आवर्स हमने इसको ये किया था, 2 to 8 आवर्स, 2 to 8 आवर्स डाइजेशन प्रोसेस चला था, एंड इसमें हाई प्रेशर था।
अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले, सोडियम एल्यूमिनेट निकल जाएगा, इसको क्या कर लेंगे हम प्लस H2O एंड दिस इज गोइंग टू गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो सेटल डाउन होता है। ये रिएक्शन आपको दिखता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इन द हॉल्स प्रोसेस में हम सिर्फ ये क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ NaOH यू आर गोइंग टू यूज़ दिस Na2CO3। इसका रिएक्शन आपको यहाँ दिया है Al2O3 2H2O plus Na2CO3, दिस इज गोइंग टू गिव यू 2NaAlO2 एक्वस, दिस इज व्हाट सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा एंड H2O भी फॉर्म होगा उसके साथ। अब ये जो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट है, इसमें हम CO2 गैस पास करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे सो दैट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच विल सेटल डाउन एंड यू विल गेट Na2CO3, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हॉल्स प्रोसेस, ये हॉल्स प्रोसेस का रिएक्शन हो गया। ऊपर का जो रिएक्शन था ये बेयर्स प्रोसेस का था। इन दोनों में डिफरेंस मैंने बताया आप लोगों को कि मेनली इसमें हॉल्स प्रोसेस में यूज़ किया जाता है Na2CO3 और बेयर्स प्रोसेस में NaOH यूज़ किया जाता है। सो द प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH3 इज ऑब्टेन्ड इन बोथ बेयर्स एंड हॉल्स प्रोसेस, is filtered, washed and dried and then calcined at 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू ऑब्टेन alumina। ये है आपका alumina Al2O3 प्लस 3H2O। अब ये alumina मिला, आपको एल्यूमिनियम नहीं मिला। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब जो कि ये ऑक्साइड है तो इस ऑक्साइड को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस इसलिए करना पड़ेगा सो एज टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम दिस। Al2O3 में O3 प्रेजेंट है, वो प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है अभी। इन दिस मेथड द मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इज डन इन अ स्टील टैंक। ये टैंक का है, ये स्टील का टैंक है एंड द टैंक हैज़ अ ग्रेफाइट लाइनिंग। ग्रेफाइट लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि ये टैंक तो पूरा स्टील का है बट उसके अंदर से हम क्या करेंगे, पूरा ग्रेफाइट का एक लेयर दे देंगे उसको, एंड दैट इज नथिंग बट द लाइनिंग ऑफ द स्टील टैंक, इसको लाइनिंग कहते हैं। द टैंक हैज़ अ ग्रेफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड, द लाइनिंग डज अ वर्क ऑफ कैथोड। तो ये जो ग्रेफाइट का लाइनिंग है यही कैथोड, एज अ कैथोड ये वर्क करता है। एंड द स्टेट ऑफ ग्रेफाइट रॉड्स आर डीप इन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट वर्क एज अ एनोड। और ये ग्रेफाइट के ही ये रहते हैं, एनोड रहते हैं इसमें, जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं ग्रेफाइट के, दैट वर्क्स एज अ एनोड। सो कैथोड क्या हो गया, ये जो लाइनिंग ग्रेफाइट का हमने बनाया था दैट विल वर्क एज अ कैथोड एंड एनोड विच आर मेड ऑफ ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट का ही रहता है सब। अब इसमें क्या होगा, अ सेट ऑफ ग्रेफाइट रॉड डीप इन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट वर्क एज अ एनोड। द cryolite and fluorspar are added in the mixture to lower its melting point to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पर ये दोनों ऐड किए जाते हैं, क्या में ऐड किए जाते हैं, इस मिक्सचर में ऐड किए जाते हैं, सो दैट यू कैन लोअर द मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अदरवाइज इट वाज ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें ये क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पर ऐड करके हम क्या करते हैं, इसका बॉयल मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो करते हैं अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब नियर टू हाफ या हाफ से भी कम कर देते हैं हम लोग। अगर ये हाफ से कम नहीं होता तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेंगी मेल्टिंग के लिए, सो इकोनॉमिकली वो फिजिबल नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर कंज्यूम हो जाती है तो आपको उतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया। पर ये दो इंग्रेडिएंट ऐड करने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो जाता है, इट इज़ अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उतनी एनर्जी आपकी सेव हो जाएगी। द एल्यूमिनियम बीइंग डिपॉजिटेड ऑन कैथोड on passing electric current, the molten aluminum being heavier than the electrolyte, it is collected at the bottom of the tank। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैथोड पे ये हो जाएगा। कैथोड तो आपको पता है, दिस इज कैथोड, ग्रेफाइट का जो लाइनिंग दिया हुआ है वही कैथोड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा एंड एज एल्यूमिनियम इज हेवियर देन दिस इलेक्ट्रोलाइट, तो वो नीचे सेटल हो जाएगा और यहाँ से आप प्योर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। The electrode reaction are as shown in the figure। एनोड पे ये रिएक्शन होगा, O2 माइनस गिव्स O2 प्लस 4E, ये ऑक्सीडेशन हो गया।
ऑक्सीडेशन किस बात के लिए हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, रिलीज कर दिया इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, गेन करने के बाद क्या हो जाएगा, इट विल बी रिडक्शन। सो दिस वे you are going to extract aluminum. Now we will see moderately reactive metals. How moderately reactive metals are extracted. The metals in the middle of the reactivity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive. Usually they occur in the form of sulfide salts or carbonate, and it is easier to obtain metal from their oxides rather than sulfides or carbonates. अभी आप देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है कि इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स रादर देन सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। तो हमारे पास जो भी सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में जो कुछ भी और आएगा, तो वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड्स, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना ईजी होता है। इसीलिए हम सबको पहले क्या कन्वर्ट करेंगे, क्या में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। सो देखो, the sulfide ores are strongly heated in air to transform them into oxide, and this process is called roasting. इसी को क्या कहते हैं हम, रोस्टिंग कहते हैं। Carbonate ores are strongly heated in limited supply of air to transform them into oxide, and this process is called calcination. Now these two are important definitions, calcination and roasting. So roasting को याद करते समय आप रोस्टेड पापड़ को याद रखना। जो भी हम पापड़ रोस्ट करते हैं, तो हम इन ओपन एयर जैसा आपका स्टोव रहता है, तो वो स्टोव पे आप पापड़ को रखते हैं और रोस्ट करते हैं। तो उसमें लिमिटेड एयर होती है क्या, नहीं, उसमें अनलिमिटेड एयर होती है, क्योंकि एयर इज़ अवेलेबल ऑल ओवर, ऑल अराउंड यू। सो रोस्टिंग इज़ डन इन अनलिमिटेड एयर, सो उसको क्या कहेंगे हम, रोस्टिंग। सो ये ध्यान में रखना कि ये द सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू द ऑक्साइड्स। तो रोस्टिंग की डेफिनेशन में ये ध्यान में रखना कि देयर इज अबंडेंट ऑफ एयर अराउंड, और उसमें कैरी आउट होता है रोस्टिंग, और उसका अपोजिट कैल्सिनेशन होता है। ये कैल्सिनेशन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होता है, इसमें इतना अबंडेंट एयर अवेलेबल नहीं रहता। द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ अ जिंक ओर। सो जिंक सल्फाइड रोस्टिंग करोगे तो ये आएगा ZnS प्लस O2, दिस इज गोइंग यू ZnO प्लस SO2। तो देखिए, ये सल्फाइड था, ये क्या में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दिस वाज रोस्टिंग प्रोसेस। और ये जो है कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन में हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में किया, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे ZnO प्लस CO2, यहाँ पे SO2 लिबरेट हो जाएगा, यहाँ CO2 लिबरेट हो जाएगा। द जिंक ऑक्साइड इज सो ऑब्टेन इज रिड्यूस टू जिंक बाय सूटेबल रिडक्टेंट सच एज कार्बन। अब इसमें अगर हम कार्बन ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। ये जो ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन के साथ लग के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, एंड जिंक विल बी अवेलेबल सेपरेटली। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, द रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर ऑल्सो यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू ऑब्टेन मेटल। दिस इज बिकॉज these metal displace moderately reactive metal from its compound. फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, MnO2 3MnO2 plus 4Al, तो Mn will be separated and oxide will form with aluminium plus heat. So these are this is example of displacement reaction as well as heat obtained हो रहा प्रोडक्ट साइड में आपको, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल। ओके, Fe2O3 प्लस Al, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे Al अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो तो Al इज अबव Fe, तो क्या कर लेगा, Al इसके अंदर चला जाएगा और Fe को सेपरेट कर देगा। सो दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, एंड एज वेल इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, हाउ यू आर गोइंग टू ऑब्टेन लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। So the metals at the bottom of the reactivity series of the metals are less reactive, that is why they found in the free state in nature. For example, gold, silver, platinum, the reserves of copper in the free state are very few. Presently copper is found mainly in the form of Cu2s. Copper obtained from Cu2s is just Cu2s ore just by heating in air. तो ये देखिए, इसमें अपने एयर में इसको हीट किया तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद आपको SO2 रिलीज हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड इज अगेन हीटेड विथ Cu2s, यू फाइंड Cu2s प्लस SO2। सो दिस वे
you are going to extract less reactive metals just by heating them. तो आप आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हो मेटल में, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसको. नाउ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, हाउ यू आर गोइंग टू रिफाइन द मेटल्स. Metals obtained by various reduction processes described above are not very pure and they contain impurities. The impurities need to be separated to obtain pure metal, and the electrolysis method is used to obtain pure metal from the impure metals. अब आपको प्योरिटी, बहुत हाई प्योरिटी का मेटल अगर चाहिए तो you will carry out electrolysis and find the purest metal. Now we have to see what is corrosion of the metals. The old iron bars of the building, copper vessels are not clean for a long time. Silver ornaments are idols exposed to air for a long time. Old abandoned vehicles fit to be thrown away. Why do the silver articles turn blackish while copper vessels turn greenish on keeping in air for a long time? Why do pure gold or platinum always glitter? Now here is the secret. Why gold is so expensive? गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, प्लैटिनम का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है. आपने देखा होगा कि जो इजिप्ट में ममीज़ बनी हुई है तो वो ममीज़ में कुछ गोल्ड मिलता है. अब वो कितना पहले का है, बहुत साल पहले का, मतलब 1000 साल पहले का होगा. तो 1000 साल पहले का जो गोल्ड रखा है वो अभी भी वैसा ही ग्लिटरी है, क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता. हम उसको नोबल मेटल बोलते हैं. और अगर वो नोबल मेटल है तो वो रिएक्ट नहीं होगा, और रिएक्ट नहीं होगा इसीलिए उसका प्राइस इतना ज़्यादा है कि यू कैन कीप इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, इवन फॉर मोर देन 1000 ईयर्स विदाउट एनी चेंज इन इट. सो वो नोबल मेटल कहलाता है. बाकी की जो सारी चीज़ें होती है इट अंडरगोज करोजन एंड आपको वो उस फॉर्म में वो मिलेगी ही नहीं. अगर मान लो उसी मम्मी में कोई लोहे का आर्टिकल रखा होगा तो वो तो करोड़ हो के पूरा मिट्टी हो गया होगा अब तक, तो मिलेगा ही नहीं वो आपको. तो इसीलिए लोहा इतना सस्ता होता है और गोल्ड इतना एक्सपेंसिव होता है. अब देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल कॉजेज लार्ज फाइनेंशियल लॉसेस. दस करोजन ऑफ आयरन, दैट इज रस्टिंग, इज अ बिग प्रॉब्लम. आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एयर एंड डिपॉजिट रेडिश सब्सटेंस Fe2O3 H2O is formed on it, and this substance is called rust. Carbon dioxide in a moist air react with the surface of copper vessel, and copper loses its luster due to formation of greenish layer of copper carbonate on its surface. This is called patination of copper. On exposure to air, the silver article turn blackish after some time, and this is because the layer of the silver sulfide formed by the reaction of silver with hydrogen sulfide in air. तो हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन होता है सिल्वर के साथ. आपके पास अगर से कोई सिल्वर का डिश हो या कोई प्याला हो या व्हाटएवर, आपने उसमें अगर एक बॉइल्ड एग रख दिया तो बॉइल्ड एग में से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती रहती है. जैसे अगर आपका सिल्वर प्योर होगा तो दैट सिल्वर आर्टिकल विल गेट ब्लैकन बाय दैट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. तो यू विल आइडेंटिफाई दैट इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ अ सिल्वर. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन इट. जब प्रेशर कुकर का मैंने एग्जांपल बताया था, उस पर जो थिन लेयर फॉर्म होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रहता है. वो भी इट्स अ काइंड ऑफ अ रस्ट ऑफ एल्यूमिनियम. ना हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट करोजन. करोजन के कारण बहुत नुकसान हो जाता है. अब सादी सी बात है, हमारे घर में कुछ आयरन आर्टिकल्स रहते हैं, जैसे ग्रिल्स रहती है और कुछ आयरन के आर्टिकल्स रहते हैं. तो हम जनरली क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग पेंट लगा देते हैं. और पेंट लगाने से होता क्या है, you will prevent the direct contact of air and moisture to the metal, because the paint is going to make one layer between them, and it will prevent, that coating will prevent the direct exposure of metal to the air or moisture. So अब यहाँ हम देखते हैं डायरेक्टली मेथड्स इसकी. तो हम जनरली क्या करते हैं कि ऐसे कुछ चीज़ों का प्लेटिंग करते हैं उसके ऊपर, आर्टिकल्स पे हम प्लेटिंग करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल गैल्वेनाइजिंग है, तो गैल्वेनाइजिंग कैसे किया जाता है. इन दिस मेथड अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन और स्टील. फॉर एग्जांपल शाइनिंग आयरन नेल्स, पिन्स, etc. In this method the corrosion of zinc occurs first because zinc is more electropositive than iron. अब ये जिंक का लेयर जो लगाया जाता है, जैसे आपने ये देखे होंगे टीन शीट्स देखी होंगी, तो वो शीट्स में भी क्या रहता है कि यू विल फाइंड इट वेरी शाइनिंग. और वो जो शाइनिंग पार्ट रहता है, इट इज़ नथिंग बट द लेयर ऑफ अ जिंक डिपॉजिटेड ओवर अ स्टील शीट्स.
वो किस बात के लिए लगाई जाती है? सो एज टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ एक्चुअल स्टील शीट्स। तो जिंक क्या होता है? जिंक इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आप देखिए जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। आप एक्टिविटी सीरीज देखिए तो जिंक इज प्लेस अबव आयरन। तो जिंक क्या होगा अगर आप इट इज़ दैट शीट इज़ गेट एक्सपोज टू गैल्वेनाइज शीट अगर एक्सपोज होती है एयर या फिर मॉइस्चर को, तो दैट गैल्वेनाइज पार्ट विल गेट रिमूव फर्स्ट, वो रिएक्ट होके वो निकल जाएगा एंड योर स्टील पार्ट विल रिमेन इंटैक्ट। सो गैल्वेनाइजिंग इज डन टू अवॉइड करोजन ऑफ द स्टील पार्ट। टिनिंग, अभी टिनिंग में क्या करते हैं कि इन दिस मेथड द लेयर ऑफ मोल्टन टिन इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल्स। वी कॉल दिस एज कलई। अ ग्रीनिश लेयर forms on the surface of the copper or a brass vessel. This greenish layer is poisonous. If the buttermilk or a curry is placed in such vessel, it gets spoiled. The tinning is done to prevent all such damages. तो अगर आपके पास ब्रास का कोई बर्तन है या कॉपर का कोई बर्तन है और उसमें अगर आप बटर मिल्क लगते हो तो बटर मिल्क क्या फॉर्म करेगा? ग्रीनिश लेयर फॉर्म करेगा एंड इट टर्न्स आउट टू बी पॉइजनस। तो पहले तो हम लोग ब्रास के ही मेटल्स यूटेंसिल्स यूज़ करते थे कुकिंग पर्पज़ के लिए ऑल, तो उसको अंदर से कलही की जाती थी। कलही मतलब अभी आपने शायद देखा नहीं होगा, पर कोई भी पीतल का बर्तन अगर आप देखोगे तो उसके अंदर का कलर जो रहता है वो डार्क ब्राउनिश कलर का रहता है एंड दैट इज़ नथिंग बट अ कलही। तो कलही से क्या हो जाता था कि आप अगर वो टीन का एक लेयर रहता था जो डायरेक्ट कॉपर का कांटेक्ट बटर मिल्क से नहीं होने देता था, तो फिर करोजन प्रोडक्ट नहीं निकलेगा उसका। सो टिनिंग इज़ डन। तो टिनिंग को ही कलही कहते हैं हम लोग। और ये कैसे होता है? मोल्टन टिन का लेयर डिपॉजिट करते हैं। नाउ एनोडाइजेशन। इन दिस मेटल द मेटल लाइक कॉपर एल्यूमिनियम आर कोटेड विद अ थिन एंड अ स्ट्रॉन्ग layer of the oxides by means of electrolysis. For this, the copper or aluminum particles are used as anode, and this oxide layer is strong and uniform all over the surface, it is useful for prevention of corrosion of the metal. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो भी मेटल है हमारा कॉपर एल्यूमिनियम इज कोटेड विद द थिन एंड अ स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. फॉर दिस the copper or aluminum particle is used as an anode and the oxide layer is strong and uniform all over the surface. It is useful for prevention of corrosion of metal. So this is anodizing. For example, when the aluminum is anodized, a thin layer of aluminum oxide is formed. It obstructs the contact of aluminum with oxygen and water, and this prevents further oxidation. This protection can be further increased by making the oxide layer thicker during anodization. तो इसमें क्या होता है कि अपने ही ऑक्साइड का लेयर उस मेटल पे दिया जाता है और उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं, जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं करोजन को. ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ जनरली नोन कि इलेक्ट्रोप्लेटेड आर्टिकल्स रहते हैं हमारे पास. तो उसमें क्या करते हैं कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं. इन दिस मेथड द लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस. Silver plated spoons, gold plated ornaments are examples of electroplating. And alloying. Alloying का मतलब क्या होता है? Alloy is a mixture of the metals and non-metals. उसको मेल्ट करके कुछ चीज़ें उसमें डाली जाती है, मेटल्स नॉन मेटल्स, और एक नया फॉर्म का ये तैयार होता है मटेरियल, उसको हम alloy कहते हैं. The majority of the metallic substances used presently are in the form of alloy. अब जैसे गोल्ड के ऑर्नामेंट हम लोग पहनते हैं, तो ये गोल्ड के ऑर्नामेंट प्योर गोल्ड के हम पहन ही नहीं सकते क्योंकि प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट. तो वी हैव टू ऐड टू सम एक्सटेंट हम उसमें कॉपर डालते हैं और उसके बाद में उसके ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं. उसी तरीके से ये भी रहता है. द मेजॉरिटी ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंसेज यूज प्रेजेंटली आर इन द फॉर्म ऑफ alloys, and the main intention behind this is to decrease intensity of corrosion of metals. Homogeneous mixture formed by mixing the metal with other metals or non-metals in certain proportion is called alloy. For example, bronze is an alloy formed from 90% copper and 10% tin. This is called bronze. Bronze statues do not get affected by sun and rain. Stainless steel does not get stains with air or water and also do not rust. It is an alloy made from 74% of iron, 18% of chromium and 8% carbon. So in recent times, various types of alloys are used
फॉर मिंटिंग कॉइन्स। जैसे कॉइन्स बनते हैं तो कॉइन्स के भी अलॉयज़ रहते हैं, वो भी ख़राब नहीं होते, बहुत सालों तक कॉइन्स ख़राब नहीं होते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटलर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।